Assalamu alaikum. Pakistan Studies, 10th class, lesson number 1, part 1. Dear student, it is very important to attend lectures. Lectures will generally give an overview of the topics and make a notes of the important aspects of the lecture. Pay attention during the lecture and revise the lecture content afterwards. Today we are going to start our new chapter, chapter number 1, History of Pakistan 2. In this, we will discuss different eras. Dear students, today our topics are Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto period, economic reforms, impact of reforms. Our first topic is Era of Zulfikar Ali Bhutto. Questions which are we cover in first topic. Question number 1. Describe the early and political life of Zulfikar Ali Bhutto. Question number 2. Briefly describe the economic effects of nationalization of Zulfikar era. Question number 3. What do you know about the labor reforms in the era of Zulfikar Ali Bhutto? Question number 4. What do you know about the agricultural reforms in the era of Zulfikar Ali Bhutto? Question number 5. Illustrate the impact of nationalization on the industry in his era. Question number 6. Illustrate the impact of nationalization on education in his era. Question number 7. Illustrate the impact of nationalization on commerce and trade in his era. Zulfikar Ali Bhutto. Introduction. Bhutto was born on 5th of January 1928. His father's name was Sir Shah Nawaz Bhutto. He was the founder of Pakistan People's Party and served as its chairman until his execution in 1979. He was a Pakistani barrister and politician who served as the ninth Prime Minister of Pakistan from 1973 to 1977 and prior to that as the fourth President of Pakistan from 1971 to 1973. Political life of Zulfikar Ali Bhutto. If we talk about the political career of Zulfikar Ali Bhutto, he was born in a wealthy and influential family. Bhutto became one of the youngest politicians in Pakistan when he entered the government led by President Ayub Khan. In 1957, Zulfikar Ali Bhutto became the youngest member of Pakistan's delegation to the United Nations. He would address the United Nations Sixth Committee on Aggression on 25th October 1957. In 1958, Bhutto became the youngest cabinet minister when he was given charge of the energy ministry by President Field Marshal Ayub Khan, who had seized power through a successful coup and declared martial law in the country. In 1960, he was subsequently promoted to Minister of the Commerce Ministry and Ministry of Information and Industry Ministry. Bhutto aided Ayub Khan in negotiating the Indus Water Treaty in India in 1960. In 1961, Bhutto negotiated an oil exploration agreement with the Soviet Union, which also agreed to provide economic and technical aid to Pakistan. He was not just a politician, he was also a best diplomat. Economic reforms. Economic condition before भुट्टो era. अगर हम माशी सूरत हाल का जायजा लें जो कि पाकिस्तान में भुट्टो का दौर आने से पहले का था तो वह हालात इंतहाई ख़राब थे, इंतहाई संगीन थे, because for a long time democratic system could not prevail in Pakistan due to martial law. Economic condition was so poor.
That's why Zulfikar Ali Bhutto disagreed with the policies of capitalists, the wealthy, and the industrialists. He wanted to save the people from their injustices. He tried his best. सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। भुट्टो ने उस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया। 22 ख़ानदान जो उस टाइम राज कर रहे थे पूरे बिजनेस के ऊपर, पूरे स्टेट के बिजनेस के ऊपर, पूरे स्टेट की ट्रेड के ऊपर, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी था। उस जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ही ये रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। बेसिकली रिफॉर्म्स का मकसद ये था और उसके लिए जो स्टेप लिए गए वो ये थे। फर्स्ट स्टेप जो था, ऑन दिसंबर 22, 1971 पासपोर्ट्स ऑफ द 22 कैपिटलिस्ट फैमिलीज पर कॉन्फिस्केटेड। उनके पासपोर्ट जो है उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको जब्त कर लिया गया। सेकेंड, 19 कंपनीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल। 19 के करीब जो कंपनीज थी उनको इलीगल करार दे दिया गया, उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया। Third one is Mr. Bhutto issued an ordinance on 2nd January 1972 under which 10 heavy industries were nationalized by the government. और गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट स्टेप लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर वो इंडस्ट्री यूनिट जो थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थे उनको सबसे पहले नेशनलाइज करने का था। Nationalization of industries. Mr. Bhutto issued an ordinance on 2nd January 1972 under which 10 heavy industries were nationalized by the government. The industries taken over by the government as under first one is automobile industry, second chemical industry, third consumer goods industry, fourth steel industry, fifth heavy equipment industry, sixth petrochemical industry, 7 cement industry, 8 social welfare services industry, 9 tractor industry and 10 heavy electrical equipment industry. बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मेन मकसद था वो इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करने का ये था कि नेशनलाइजेशन से जो 22 फैमिलीज़ हैं जो पूरे स्टेट के बिजनेस को कंट्रोल कर रही हैं, उनका वो कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसका फ़ायदा जो होगा स्टेट की इकोनॉमी जो है उसको होगा। इसीलिए द इंडस्ट्रीज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। और जल्दी फिर सेकंड डिसीजन लिया गया जिसके अकॉर्डिंग 16 जनवरी 1972 को 11 के करीब मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। इन इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने के बाद 20 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट जो थे उन्हें बंद कर दिया गया और सेपरेट मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया गया हर यूनिट के अंदर, हर इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर जो गवर्नमेंट के अंडर था, ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर गवर्नमेंट पूरी निगरानी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो हासिल किया जा सके ताकि लोगों की वेलफेयर पे लगाया जा सके। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। After the success of the first stage, the nationalization program stepped into the second stage when it was launched on 1st January 1974. Intending to nationalize the banking and financial industry and sector in Pakistan. Passed by the parliament, over 13 major banks, over a dozen insurance companies were forcefully nationalized. The big capitalist families had their own banks and insurance company. जो बड़ी 22 फैमिलीज थी उनके अपने बैंक्स थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को तोड़ने के लिए, जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने ये स्टेप लिया क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन इंडस्ट्री से, उन बैंक से, उन इंश्योरेंस कंपनी से वो प्रॉफिट नहीं हासिल कर पा रही थी जो कि उसको मिलना चाहिए था। तो उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए बैंक्स और बाकी अदारों को जो है नेशनलाइज किया गया। बहुत से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया जिसमें मेन जो बैंक्स की ब्रांचेस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, लाइक हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ऑस्ट्रेलेशिया बैंक, प्रीमियर बैंक, हबीब बैंक, कॉमर्स बैंक, मेमन कोऑपरेटिव बैंक, लाहौर कमर्शियल बैंक, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, पाकिस्तान बैंक,
Bank of Bahawalpur and Standard Bank, etc. Nationalization of insurance companies. जहां बैंक्स को इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको भी नेशनलाइज किया गया जिसमें मेन जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके नाम ये हैं ईस्टर्न वेस्टर्न यूनियन, यूनाइटेड इंश्योरेंस पॉलिका, न्यू जुबली फैंसी, आदनजी इंश्योरेंस आदनजी। रिजल्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स के बहुत से अच्छे नताज हासिल हुए। लाइक दीज रिफॉर्म्स इंक्रीज द नेशनल इनकम, आमदनी में इजाफा हुआ और वही आमदनी जो है फिर आम आदमी की प्रोग्रेस के ऊपर लगाई गई। बैंक को नेशनलाइज करने से, इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज करने से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट था, मोर एंड मोर प्रॉफिट came into the pocket of Pakistan. And these steps brought prosperity to the worker of the bank and the common people. Our next point is labor reforms. Bhutto and his party came to rule by socialist reforms for the poor and deprived class of the state. Roti, kapra or makan was their frequently enchanted slogan. Bhutto's economic policies were influenced by the socialist ideas and promises to the removal of feudalism. Rapid industrialization created a gulf between different societies and exacerbated the grievances of people. On 10th of the Feb 1972, Bhutto announced radical labor reforms that union power of labor was increased with formation of work council and labor courts of industrial disputes. Profit sharing was increased in big industries from 2 to 4%. Employers were given cheap housing and education for their children. Some important points of labor reforms are like a formation of labor committee. सबसे पहले लेबर कमेटी बनाई गई जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको संभालना था, डिफरेंट टाइप्स के अफेयर्स को संभालना था, देखना था, स्टोर्स और अकाउंट्स का चेक एंड बैलेंस रखना इस कमेटी का काम था। उसके अलावा लेबर के साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है, ओनर कैसे ट्रीट कर रहा है या ओनर के और लेबर के दरमियान क्या इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना या उसको देखना भी इस कमेटी का काम था। उसके बाद बोनस ऑफ फॉर लेबर्स। अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, अ बोनस वाज टू बी पेड एनुअली इक्विवेलेंट टू वन सैलरी, यानी एक सैलरी के मुताबिक उसको सालाना जो है बोनस दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे जैसे प्रोडक्शन में इंडस्ट्री की या फैक्ट्री की प्रोडक्शन में जैसे जैसे बेहतरी आती है उसके साथ साथ उसको एक्स्ट्रा जो है स्पेशल बोनसेस भी दिए जाएंगे। वर्किंग टाइम ऑफ लेबर्स जो है उसको बाकायदा तौर पर मुकर्रर किया गया। 48 आवर्स जो है पर वीक जो है वो कंपल्सरी करार दिए गए। इसके अलावा और बहुत सी फैसिलिटीज और अलाउंसेस जो है लेबर्स को दिए गए। ओल्ड एज पेंशन, इंश्योरेंस एंड ग्रेजुटी जो है उसको जो है सेट किया गया। मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं और सोशल सिक्योरिटी जो है वो लेबर्स को दी गई। इसके साथ साथ रेजिडेंशियल और एजुकेशन फैसिलिटीज भी जो है लेबर्स को दी गई ताकि उनके बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वाज सेट अप फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स ऑफ द लेबर्स थ्रू ट्रेड यूनियन। Junior courts were set up in this respect so that laborers got the right to take their cases to the labor court themselves. इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के थ्रू बहुत से मसाइल को हल किया गया। ऑनर्स और लेबर्स के दरमियान जो इश्यूज थे उनको ख़त्म किया गया, उन झगड़ों को ख़त्म किया गया। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी जो है लेबर्स को प्रोवाइड की गई जिसके अकॉर्डिंग मिल ऑनर्स वर बाउंड टू गिव क्लियर एंड सॉलिड रीजन व्हाइल टर्मिनेटिंग देम। किसी भी लेबर को टर्मिनेट करने से पहले, डिसमिस करने से पहले उसको जो है रीज़न बाकायदा बताई जाए, रीज़न बताई जाए। और अगर कोई भी जो ऑनर है वो किसी भी लेबर को इलीगली डिसमिस करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स।
As you know very well, Pakistan is an agricultural land, and agriculture plays an important role in the economy of Pakistan. Agriculture reforms have also played an important role in increasing agriculture production in Pakistan. This increased the agricultural income of the farmer and facilitated the farm holdings. It improves the relationship between both the landowner and the tenant to save the farmers from exploitation. Bhutto's government announced the following agricultural reforms. First one is limit of land ownership. लैंड ओनरशिप जो है उसकी एक हद मुकर्रर की गई. नो पर्सन वाज टू ओन मोर देन 150 एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड. जो जरखेज जमीन है वो 150 एकड़ से ऊपर कोई भी नहीं रख सकता. उसके अलावा जो नॉन इरिगेटेड लैंड है वो 300 एकड़ के करीब रखी जा सकती थी. सेकंड वन इज लैंड परचेज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो लैंड खरीदना चाहता है तो वो 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन अपने पास नहीं रख सकता during the government servant. Services. आफ्टर रिटायरमेंट वो 100 से ऊपर जो है वो जमीन फिर ले सकता है. नेक्स्ट वन इज सरप्लस लैंड. द सरप्लस लैंड वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. द लैंड बियॉन्ड these limits was confiscated and distributed among the farmer and peasants. जो एक्स्ट्रा लैंड थी जो जब्त की गई थी उसको डिफरेंट जो तबकात थे, फार्मर्स थे और डिफरेंट जो गरीब लोग थे उनमें तकसीम कर दिया गया. जो जागीरदारों के पास या जमींदार जो थे उनके पास जो वर्कर्स काम करते थे उनके दरमियान तकसीम कर दी गई. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट ऑफ लैंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. According to these reforms, no one except for education institution was allowed to cross this limit of land. इसके साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनकी भी बाकायदा एक हद मुकर्रर की गई कि उससे ज़्यादा की लैंड जो है वो अपने अंडर नहीं ले सकते. नेक्स्ट वन इज पे ऑफ लैंड एंड वाटर टैक्सेस. अकॉर्डिंग टू these reforms, only property owners would pay the land and water taxes. वाटर टैक्सेस और जो जितनी भी पेमेंट थी या टैक्सेस को पे करना था वो सिर्फ लैंड ओनर की जिम्मेदारी थी कि वो पे करेगा. उसके अलावा जो वर्कर्स हैं या दूसरे किसान हैं, आम लोग जो हैं उन पे वो टैक्सेस जो हैं वो लागू नहीं होते थे. ठीक है, या होंगे. लाइफ स्टॉक फार्म्स एंड गार्डन्स. और जो हद मुकर्रर कर दी गई है 150 एकड़ और 300 एकड़, उसके अलावा लाइफ स्टॉक फार्म्स के लिए और गार्डन्स के लिए अलग से जमीन जो है वो नहीं दी जाएगी. इसके साथ साथ जितनी भी शिकार गायें हैं वो भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली. eviction of the peasant. According to this reform, the property owner were not allowed to evict the peasant. यानी इसके मुताबिक किसी भी जो किसान है या कोई भी जो मज़ारा है उसको जो लैंड ऑनर है वो अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता. उसको कोई राइट हासिल नहीं है कि वो ज़मीन से उसको बेदखल करे. जब तक कि वो किसी भी रूल को वॉयलेंट नहीं करता तब तक कोई भी उसके खिलाफ जो है एक्शन नहीं ले सकता. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नैच्ड लैंड. जितनी भी ज़मीन जो है वो कब्जे में ली गई जो कि तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ के करीब थी उसको आम किसानों के अंदर तकसीम कर दिया गया इन मार्च 1976. Okay students, next one is impact of nationalization on the industry. Here are the positive and negative impacts of nationalization on industry. First, we will check out the positive impacts. First one is control prices. By nationalization, the control over the industrial units helped the government to maintain the prices of the industrial goods. जब स्टेट ने या गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अपने अंडर ले लिया तो उससे जो इंडस्ट्रीज की गुड्स की प्राइसेस थी वो नीचे आ गई, कंट्रोल में आ गई. महंगाई आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू होगी. Second one is increase in the production. The nationalization of the industrial unit
increase the production of the state industries. जैसे ही गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया, इनकी प्रोडक्शन में बेहतरी आना शुरू हुई. थर्ड वन इज बेनिफिट्स फॉर द लेबर. जैसे ही इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आई, नेशनलाइज्ड हो गई, तो उसके बाद जो लेबर्स हैं उनको बहुत से बेनिफिट्स हासिल हुए. उन्हें बाकायदा मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, उनके बच्चों को फैसिलिटीज जो है वो दी गई. उसके अलावा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की गई. ज़्यादा से ज़्यादा बोनसेस जो हैं उनको प्रोवाइड किए गए. नेक्स्ट वन इज टैक्स पेमेंट. The industrial institutions began to pay all necessary taxes to the government, which increased the national income. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज जो हैं गवर्नमेंट के अंदर आती गई, इंडस्ट्रियल जो है वो बाकायदा जो है वो टैक्सेस को पे करने लगे, जिससे जो है नेशनल इनकम जो थी वो इम्प्रूव होने लगी. फिफ्थ वन इज एटीट्यूड ऑफ द मिल ओनर्स टूवर्ड द लेबर्स. जैसे ही इंडस्ट्रीज जो हैं वो नेशनलाइज्ड हुई, जो मिल ओनर्स थे उनके एटीट्यूड जो वो लेबर के मुताबिक जो लेबर्स के जो अगेंस्ट थे वो चेंज होना शुरू हो गए. लेबर्स और उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए. और जो लेबर्स बार बार अपने ओनर्स के खिलाफ स्ट्राइक्स करते थे, जल्द से जुलूस करते थे, वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए. और जो एक होल्ड था 22 फैमिलीज का पूरे इंडस्ट्रियल सर्कल के ऊपर, और जो जागीरदाराना निज़ाम जो था चल रहा था, वो एकदम से जो है कोलैप्स हो गया, वो गिर गया, ज़मीन पे आ गया. और बेसिकली इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने का मकसद भी यही था कि जो जागीरदाराना निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आम आदमी जो है वो सुकून का सांस ले सके, आम आदमी जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी को गुजार सके. सेकेंड वन इज नेगेटिव इम्पैक्ट्स. जहाँ जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए, अच्छी चीज़ें हुई, वहीं उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होना शुरू हो गए. सबसे पहला है स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जैसे ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आना शुरू हुई, जो डिफरेंट ओनर्स थे उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्रीज पे वो ध्यान देना ज़रा कम कर दिया, और सारा बर्डन जो है वो जब स्टेट के ऊपर पड़ गया, गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गया, तो इंडस्ट्रीज जो है उनकी डेवलपमेंट जो है वो कम होना शुरू हो गई. उसके बाद है इंक्रीज एक्सपेंडिचर्स. जो अखराजात थे वो बढ़ना शुरू हो गए, और सारे अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आना शुरू हो गए जब उसने जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसका कंट्रोल संभाला. स्लो परफॉर्मेंस. नेक्स्ट वन इज स्लो परफॉर्मेंस और अ डेफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस. जैसे ही लेबर यूनियंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई, उन्हें पॉलिटिकली जो है आज़ादी हासिल हुई, तो उन्होंने स्ट्राइक्स शुरू कर दी. हर बात पे जो है वो अपने बेनिफिट्स को इंक्रीज करने की डिमांड रखते, और जिससे जो है यूनिट्स जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होना शुरू हो गई. उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द लेबर्स वर मेड इन the industrial units for nothing, who were interested more in benefits than in work. So the speed of the work slowed down gradually. जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर होना शुरू हुआ, लेबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाने लगे पॉलिटिकल रेफरेंस के थ्रू, तो उससे जो लेबर्स थे उनका मकसद जो था जस्ट बेनिफिट्स हासिल करना था, उन्हें काम करने से कोई मतलब नहीं था. तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो उससे करप्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, और स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है उसका एटीट्यूड हो गया. उससे जो है बर्डन ऑन नेशनल ट्रेजरी जो है या बर्डन ऑन स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो वीक थे. कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनमें काम ठीक से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो नेशनल इनकम है उस पर बर्डन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इनकम हासिल होने की बजाय जो ज़र मुबादला ऑलरेडी मौजूद था नेशनल ट्रेजरी के अंदर या ख़जाने के अंदर मौजूद था, वो सारा जो है वो उन यूनिट्स के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हो गया. सो जहाँ फ़ायदे हासिल हो रहे थे वहाँ नुकसानात शुरू हो गए. Our next point is impact of nationalization on commerce and trade.
Here are the positive and negative impacts of nationalization on commerce and trade. First one is increase in production. The nationalization of industrial units increased the production of the state industry. जो आपकी प्रोडक्शन स्पीड थी वो इम्प्रूव होना शुरू हुई जैसे ही जो आपके ट्रेड आपकी तजारत है और कॉमर्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आई. सेकेंड वन इज बैलेंस ट्रेड. और जैसे ही इंडस्ट्रीज को और ट्रेड को नेशनलाइज किया गया उसके साथ ही जो है आपकी तजारत जो है उसमें एक बैलेंस आया. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है उसके अंदर एक बैलेंस आ गया. The Bhutto government encouraged the export of machinery and raw material of industrial expansion. और जो ये बैलेंस था उसने पाकिस्तान जो है उसको तरक्की की तरफ ले जाने में अहम रोल अदा किया. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ प्राइसेस. जैसे जैसे जो है इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनलाइज होती गई तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट को हेल्प किया प्राइसेस को मेंटेन करने में. इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं जब इंडस्ट्रीज ओनर्स हैं उनके हाथ से निकल के गवर्नमेंट के हाथ में आई तो फिर उन गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन होना शुरू हुई जिससे जो महंगाई है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गई. ओके, नेक्स्ट आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स. फर्स्ट वन इज डाउन द वैल्यू ऑफ रूपी. The salaried class was affected badly because of the inflation, though there was an increase in export after the devaluation of the rupee. The price also increased. Prices आस्ता आस्ता फिर बढ़ना शुरू हो गई. उसके बैड इम्पैक्ट्स जो हैं या कहने के साइड इफेक्ट्स जो हैं ये नेशनलाइज करने के वो हमें नजर आना शुरू हुए आस्ता आस्ता. जो हमारे आम तबका था जो तनख्वाह पे जो लोग चल रहे थे उनको फिर जो है महंगाई जो है उसका सामना करना पड़ा और पैसे की जो कीमत है वो आस्ता आस्ता गिरना शुरू हो गई. सेकंड वन इज इंपोर्ट लग्जरी गुड्स. The import of luxury goods increased. There was an increase in the import expense of machinery, which affected the balance of payment. जब हमने बड़ी बड़ी मशीनरी जो है बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दी, लग्जरी गुड्स जो है अपनी आसाइशों के लिए अपने आराम के लिए बड़ी बड़ी जो मशीनरी है बड़ी बड़ी जो गुड्स हैं वो ख़रीदना शुरू कर दी तो उससे जो है हमारी इकोनॉमी जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो बैलेंस नहीं रह सकी. उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ. एंड ऑफ द रिजर्व्स. जब अखराजात ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसका सारा जो असर है वो हमारा जो कौमी ख़जाना है उस पर होने लगा जिससे हमारे जो सिक्योर रिजर्व्स थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए. नेक्स्ट वन इज इम्बैलेंस ट्रेड. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो नेशनलाइजेशन की तरफ आती गई तो साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगी जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया. स्पेशली इन 1973 बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ गया. Our next topic is impact of nationalization on education. The government of Mr. Bhutto nationalized many of the private education institutions in the country in 1971. A large number of Christian education facilities were also nationalized in 1972. One example is Gordon College in Rawalpindi. In Peshawar, nationalization of Christian schools happened under a later government. Here are some positive and negative impacts of nationalization on education. First, we will discuss positive impacts. First one is financial benefits for staff. The salaries of the education staff working in these institutions were very meager. Due to nationalization, the financial benefits of the employees were brought at par with those of the government educational institutions. जो एजुकेशन स्टाफ था स्कूल्स के टीचर्स थे या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स थे या प्रोफेसर्स थे उनकी जो पेस थी वो बहुत कम थी. मामूली तनख्वाहों पे वो काम कर रहे थे. जब एजुकेशन को नेशनलाइजेशन के अंदर लेके आए या नेशनलाइज किया गया तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट्स हासिल हुए. टीचर्स की जो तनख्वाहें उनमें इजाफा हुआ.
उनको और बहुत से मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल हुए. सेकंड वन इज कंसेशंस इन द ट्रांसपोर्ट. स्टूडेंट्स वर गिवन स्पेशल कंसेशंस इन द ट्रांसपोर्ट फेयर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भिजवा सकें. नेक्स्ट वन इज स्कॉलरशिप. स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है उसको इंक्रीज की गई, बढ़ाई गई, ताकि तालीम जो है उसको आसान बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को तालीम जो है वो दिलवा सके. नेक्स्ट वन इज स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप्स जो हैं उनको इंक्रीज किया गया. जिन स्टूडेंट्स के वजीफे नहीं लगे हुए थे उनके वजीफे लगाए गए, उनको स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें. नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस. Many medical, engineering and professional universities were established for the better development of the country. डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कायम किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्किल्स और टेक्निक्स जो हैं वो हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में जो है हिस्सेदार बन सकें, शामिल हो सकें. नेक्स्ट वन इज अपग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस. Schools and colleges were upgraded which opened the door for higher education. स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं उनको हायर लेवल का दर्जा दिया गया, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसको आसान बनाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें. नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. इसके साथ साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कायम किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जा सकें. स्पेशली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर्स वर ओपन इन द entire country and thousand untrained teachers were employed. बहुत से जो अनट्रेंड टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उनको जॉब्स दी गई. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसको परमिशन दी गई, उसको सेटअप करने की परमिशन दी गई, which provided the students an opportunity to study through correspondence and electronic media. जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ एजुकेशन पहुँचाने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी था, ताकि दूर दराज के जो एरियाज हैं वहाँ के लोग आसानी के साथ जो है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी एजुकेशन जो है, अपनी तालीम जो है वो हासिल कर सकें. और ऐसे लोग भी जो उम्र में बड़े थे और स्कूल कॉलेज जाके तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए भी अडल्ट एजुकेशन जो है उसका भी साथ इंतज़ाम किया गया. बट जहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने में आए, वहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो भी हमें देखने में मिले. फर्स्ट वन इज अनहैप्पी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओनर्स. जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रीवियस ओनर्स थे वो खुश नहीं थे इस तब्दीली से, और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें वापस मिल जाएं. इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट जो है उस पर जोर डालना शुरू कर दिया, जिससे हालात जो हैं आस्ता आस्ता एजुकेशन के हालात खासतौर पे ख़राब होना शुरू हो गए. नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल बर्डन. जब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर लाया गया और जो जितना भी स्टाफ था उसको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज जो है वो पे की जाने लगी, तो उससे फाइनेंशियली जो है बर्डन इंक्रीज होना शुरू हो गया गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था. थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टर्स एटीट्यूड. जब कंसेशन प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट्स को फेयर्स के अंदर, तो इससे टेंशन डेवलप होना शुरू हो गई ट्रांसपोर्ट ओनर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में. रोज़मर्रा लड़ाई झगड़े होने लग पड़े, बसेस जलाई जाने लग पड़ी, और आस्ता आस्ता हालात जो हैं, मुल्की हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट यूनियन. The student unions were organized in the institution through the political parties which were a great threat to peace and security. स्टूडेंट यूनियंस कायम कर दी गई, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बढ़ने लगा और बच्चों का ध्यान तालीम से हटकर सियासत की तरफ और लड़ाई झगड़ों पर लग गया. नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड फ्रीडम फॉर स्टूडेंट्स स्पॉइल एजुकेशन सिस्टम.
The unlimited liberty made the students negligent to educational activities, which was a great concern for the parents. जैसे जैसे बच्चे एजुकेशन से दूर होने लगे, बच्चों को आज़ादी मिलना शुरू हुई, तालीमी अदारे जो हैं उनके अंदर यूनियंस कायम हुई, उससे हालात जो आस्ते आस्ते बिगड़ने लगे। बच्चों ने तालीम से ज़्यादा सियासत के अंदर और पार्टियों के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे पेरेंट्स जो थे वो परेशान होना शुरू हो गए। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की जगह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई। Today our home task is learn question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 from your book Key Book Aina Pilot Super 1. Note learn all the questions on daily basis and listen complete lecture with full interest. Hope you understood all the topics. Thank you.